क्लास 10 में कंपार्टमेंट पेपर एग्जाम हेल्ड ऑन 16 जुलाई 2025। तो आज हम देखते हैं कंपार्टमेंट का जो मैथ्स का पेपर था स्टैंडर्ड मैथ्स का वो कैसा आया था। So these are the questions. The question number 1. The question number 1, this is the question from AP. Sixth term they are asking. What is the sixth term? So root 27, we can write the root 27 equals to 3 into 3 into 3. So it is 3 root 3. So 3 root 3 is root of 27. Now root of 75. So root of 75 is 25 into 3. So root of 25 is 5 and root of 3 is root of 3. So 5 root 3. So the value of root 75 is 5 root 3. Similarly, root of 147. So we can write it as 7 2s are 42 and 7 1 is 7 and 21 is 7 3 in the root. So 7 root 3. The value of root of 147 is 7 root 3 and so on. So this is an AP. We have to find the sixth term. So first term is A is 3 root 3 and the D common difference is 5 root 3 minus 3 root 3. Second term minus first term is the common difference of the AP. So it is 2 root 3. Now we have to find the sixth term. So the formula for nth term is A plus n minus 1 into D. So A of 6 we have to find. So the value of n is 6. First term is 3 root 3. And the value is 6. And the value of D is 2 root 3. So 3 root 3 plus that is 5 into 2 root 3. So it is 3 root 3 plus 10 root 3. You have to add. So it is 13 root 3. 13 root 3. So according to option you have to 13 को inside लेके जाना पड़ेगा. So it is 13 into 13 into 3. 13 square of 13 is 169. So you have to multiply root of 169 9 3 27 carries 2. This is the 18. 18 and 2 20. 3 1 is 3. 3 into 5. So root of 507. So sixth term is root of 507. So this is the answer is D option is correct. So D option is root of 507. In the next question, A, C are two opposite vertices of a parallelogram ABCD. So firstly we have to draw a parallelogram ABCD. So suppose this is a parallelogram ABCD. Okay. So A and C are two opposite vertices given. So the A is minus 4 comma 5
and C is 8, 2. Of a parallelogram, its diagonal intersect each other at P A, P. जो diagonals हैं वो intersect कर रहे हैं एक particular point P A, B पे. So this is one diagonal and this is other diagonal, and both the diagonals intersect at P. So this is the point A, B. This is the P point. So we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. So P is the midpoint of AC. We can say that P is midpoint of AC. Midpoint of AC, because in the parallelogram diagonals bisect each other. So by the midpoint formula, we can say that A equals to 8 minus 4 by 2. So value of 8 is 4 by 2, it is 2. Similarly, P, the y coordinates is y1 plus y2 by 2, y1 plus y2 by 2. So it is 7 by 2. So value is 3.5. So by the option, you will put these values in the option. So अगर आप E option में put करेंगे, so A is B equals to A minus 1.5. So B जो है 3.5 है और E जो है A की वैल्यू 2 है, तो 2 minus 1.5. सो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए क्योंकि राइट हैंड साइड 0.5 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड 3.5 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है. बट बी ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर आप बी ऑप्शन को देखें तो उसमें दिया है बी इक्वल्स टू ए प्लस 1.5. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी इज 3.5 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 2. सो 2 प्लस 1.5. सो राइट हैंड साइड भी 3.5 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी 3.5 आ रहा है. तो ए और बी की वैल्यू सिर्फ बी ऑप्शन में ही सेटिस्फाई हो रही है. जो बी ऑप्शन में इक्वेशन गिवन है उसकी में ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है. फॉर द बाय द ऑप्शन द आंसर इज बी, और आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. So now the question number 3, it is the linear equation, pair of linear equation in two variable chapters. So the pair of linear equation is this represents coincident lines. So means that coincident lines अगर होती हैं तो उसमें a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 होता है अगर लाइंस coincident होती हैं. So a1 a2 जो होता है वो coefficients of x होते हैं. तो यहाँ पे x के coefficient 2 और यहाँ पे x का coefficient minus का 1 minus 3k. So we will write it a1 it is 2 and we will minus का 1 minus 3k, it is the a2. Similarly b1 the this coefficient of y, and here the coefficient of y is 4k and the constant term it is 5 and 6k plus 2. Okay, now simplify it. It is 2 upon जो 1 अंदर जाएगा तो it is 3k minus 1 equals to 3 upon 4k. Now cross multiply. So 4 to the 8, 8k equals to 3 3 are 9k minus 3. So it is 9k minus 8k equals to 3. So value of k equals to 3. So the value of k is 3 in the B option. According to B option, is the value is 3. अब भी आप इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हैं. You will get the same value k equals to 3. Now the next question, question number 4. In the question number 4, in the given figure, PQ and PR are tangents to the circle such that PQ equals to 7 centimeter and angle RPQ equals to 60 degree. So इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्यू आर को फाइंड करना है. सो क्यू आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो हमें पता है कि इन सर्कल चैप्टर एक्सटर्नल पॉइंट से हम जब टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, सो वो इक्वल लेंथ्स की होती हैं. फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सो बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ.
तो ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द आउटर पॉइंट पी। सो अगर ये 7 हो गया और ये भी 7 है, अगर क्यू आर फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू एंड पी आर इक्वल होगा फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो हमें पता है कि इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। सो अगर यहाँ से आप फाइंड आउट करें, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो मीन्स थीटा प्लस 60 इक्वल्स टू 180। सो 2 थीटा इक्वल्स टू 180 minus 60. So 2 theta equals to 120. So theta equals to 60 डिग्री। सो आपको ये पता चला कि ये जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री आ रही है। सो अगर इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर सारे एंगल 60 डिग्री आ रहे हैं, तो इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। थीटा थीटा 60, सो यू कैन से दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle कि all the sides, all the angles are equal, so all the sides are also equal, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। सो आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्यू आर इज 7 सेंटीमीटर। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। कार्ड नंबर 10, 11, 12 एंड सो ऑन 30, तो 10 से लेके 30 तक के नंबर है कार्ड्स में, आर केप्ट इन ए बॉक्स एंड सफल्ड थ्रोली। Rohit draws a card at random from the box. The probability that the number on the card is multiple of 4 and 5. तो हमें probability निकालना, तो पहले फेवरेबल केसेस निकालने पड़ेंगे। फेवरेबल केसेस वो हैं कि जो नंबर हम उसमें से 11 से 10 से लेके 30 तक के नंबर के जो कार्ड रखे हैं उसमें 4 और 5 का मल्टीपल है। सो 4 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट यहाँ पे तो हमारे कार्ड्स में 4 है ही नहीं। हमारे कार्ड्स में जो नंबर्स हैं वो 11 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो 4 3 जा 12, 4 की टेबल में कौन कौन आता है, 4 3 जा 12, 4 4 जा, पहले हम 4 की टेबल लिख लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। अब 28 से ज्यादा 32 नहीं कर सकते, क्योंकि जो नंबर पे कार्ड पे नंबर्स मेंशन है और 30 तक ही मेंशन है। और 5 की टेबल पे जाते हैं। सो 5 2 जा 10, 10 है कार्ड पे नंबर, सो 10 पॉसिबल है। और 15 पॉसिबल है। 5 4 जा 20, तो 20 पहले से ही आ चुका है, सो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये नंबर आ सकते हैं। तो ये दीज आर द फेवरेबल केसेस। ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए, फेवरेबल केसेस। सो फेवरेबल जो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। सो फेवरेबल जो आ रहे हैं हमारे केसेस 9 आ रहे हैं। दीज आर 9, 1 2 3 यू हैव टू काउंट इट 9। एंड टोटल कितने हमारे 10 से लेके और 10 to 30। सो 11 to 30 इट इज 20 एंड 21। So 9 upon 21 is the answer. So B option is 9 upon 21. The probability that the number on the card is a multiple of 4 or 5 is 9 upon 21. अब इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं 3 से। तो ऑप्शन में 9 upon 21 given है, so you will take the 9 upon 20. This is also good question, question number 6. So in this question, triangle ABC and triangle PQR will be similar. It is given. अगर ABC PQR के सिमिलर है तो A के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा पॉइंट है वो B है, और B के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो Q, और C के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है सिमिलर में वो R है कॉरस्पॉन्डिंग। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी ऑल द साइड्स, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, these two triangles are similar, so the corresponding sides are in same ratio, corresponding sides same ratio में होगी। So we can say that AB upon
ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा पी है, जहां जहां ए आएगा वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग में हमें पी लेना है। नाउ अब हम देखें तो यहाँ पे हमें ए भी पता था 4, और पी क्यू जो है इट इज पी क्यू 8, और जो बी सी अपॉन क्यू आर, सो बी सी यहाँ पे हमें नहीं पता है, क्यू आर भी हमें नहीं पता है। ए सी एंड पी आर की बात करें तो ए सी हमारा 4 है और पी आर 8 है, सो 4/8। सो रेशियो जो आ रहा है वो 1:2 आ रहा है। इसमें सेकंड ऑप्शन में लिखा था कि बी सी और क्यू आर का रेशियो 2:1 है, जो कि रॉन्ग हो गया, क्योंकि बी सी और क्यू आर का जो रेशियो है वो 1:2 आ रहा है। अगर 1:2 होता ऑप्शन में होता तो वो करेक्ट माना जाता। लेंथ ऑफ साइड बी सी इज 4√2 सेंटीमीटर। तो बी सी तो हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें क्यू आर नहीं पता होगी। ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ए का जो मेजर है वो हमारा 35 डिग्री, तो मैंने बताया था एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी है। सो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, और जब हम एंगल पी फाइंड करेंगे तब हमें एंगल ए के लिए एंगल पी की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमें एंगल ए फाइंड करना है तो हम एंगल पी फाइंड करते हैं। अब एंगल पी कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल दिए हैं इसमें हम देखें तो 8 साइड्स है, तो इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी टू साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि इन्हें ट्रायंगल इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो अगर ये 35 है इस 8 की अपोजिट साइड, तो इस 8 की अपोजिट साइड ये भी कितनी होगी, 35। अगर ये दोनों 35 हो गई तो क्या हम ये इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस। अगर हम देखें तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। सो ये एंगल निकलेगा 180 माइनस 35 माइनस 35, सो 180 माइनस 70। सो दिस एंगल इज 110 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल पी की वैल्यू आ रही है वो 110 डिग्री। मैं बोला था एंगल पी, ए ही पी के इक्वल है। सो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए इज 110। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक्स बाई पी की वैल्यू की पावर 2/3 फाइंड आउट करना है। तो हमें एक्स बाई पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर ये पी इधर डिवाइड में जाएगा तो एक्स बाई पी की वैल्यू होगी कॉस क्यूब अल्फा, और अगर हम वाई बाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो वाई बाई क्यू की वैल्यू होगी साइन क्यूब अल्फा। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें एक्स बाई पी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है कॉस क्यूब अल्फा की पावर 2/3 प्लस वाई बाई क्यू की वैल्यू है साइन क्यूब अल्फा, सो साइन क्यूब अल्फा की पावर 2/3। सो यहाँ पे जब पावर पे पावर होती है हमें पता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है पावर्स में। सो पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही यहाँ पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इट इज साइन स्क्वायर अल्फा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। So option number A is correct. A option, the one is answer for this question. Okay. Now for question number 8. Question number 8 is coming from the coordinate geometry chapter. So ABC is a triangle. B lies on x-axis at a distance of 4 units. बेटा अगर हम कार्टेशियन प्लेन बनाए यहाँ पे, so इस कार्टेशियन प्लेन में हमें बोला है B lies on x axis at a distance of 4 unit from y axis। so ये हमारी y axis है। y axis से 4 यूनिट डिस्टेंस पे, y axis से 4 यूनिट डिस्टेंस पे ये पॉइंट है इन x axis। so इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0 at its right। c is the c जो ऑन द y axis, c जो एक पॉइंट है जो कि y axis पे है, एंड इट इज 3 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ये 3 यूनिट अवे है फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन है।
ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर, ये हमारा पॉइंट है सी। दिस इज द पॉइंट सी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 0,3। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। सो इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 0,0, तो अगर हमारे ए के कोऑर्डिनेट 0,0 है यानी पे ओरिजिन है, तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है। सो ये हमारा था बी। सो ए बी सी के हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये हमें पता है ए बी। क्या हमें ये भी पता है बी सी? क्या हम ए सी बता नहीं सकते हैं? इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज √3² + 4²। सो ये आपको मिलेगा √25 यानी 5। सो ये आ जाएगा 5। जैसे ये 5 आ गया, तो हमें ए बी सी का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स यानी 3 + 4 + 5, 5 4 9 9 3 12। सो आंसर हो जाएगा 12 यूनिट्स। सो द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 12 यूनिट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर आप जैसे सब बोल रहे हो वैसे वैसे अगर आप फिगर आउट कर ले रहे हैं, यू हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना ले रहे हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये 9th के कंसेप्ट बेस्ड था। So question number 9. In the given figure, the graph of the polynomial y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका अगर हम देखें तो हमसे पूछा है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि a <0। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट 11 का भी, बट बेसिक हमें पता होना चाहिए कि अगर हम हमारा a <0 होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका जो पैराबोला बनता है, क्योंकि ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला, तो उस केस में वो अपवर्ड पैराबोला बनता है, उसमें डिसेंटीना ऊपर की तरफ बनता है। जबकि अगर a <0 होता है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है और डिसेंटीना नीचे की तरफ बनता है उसमें। तो a <0 पे हमारा ये पैराबोला बनता है, और e <0 पे ऊपर को खुलने वाला, ऊपर को मुंह खुलता हुआ पैराबोला, और a <0 पे नीचे की तरफ मुंह खुलता हुआ पैराबोला बनता है। तो यहाँ पे देखो पैराबोला नीचे की तरफ मुंह खुलता हुआ बन रहा है। सो इट इज a <0। अब c <0 अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो वैसे तो हमें पता चल गया जो पैराबोला का शेप देख के कि a <0 होगा। बट c <0, c क्या होता है? c वाई इंटरसेप्ट होता है। मतलब जब हमारा ये जो पैराबोला है, अगर मैं इसको आगे को बढ़ाऊं तो ये बढ़ेगा आगे को। तो ये एक्स एक्स वाई एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे जहाँ कट करता है उसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, तब वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? ये 0 ये 0, तो वाई की वैल्यू सी मिलेगी। तो जहाँ पे x 0 होता है, मतलब x कहाँ 0 होता है? वाई एक्सिस पे। सो वाई एक्सिस पे ये जो हमारा पैराबोला कहाँ कट कर रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इसका वाई इंटरसेप्ट यानी जो सी होता, ये 0, c होता, तो सी इसका नेगेटिव आता। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से नीचे है ये वाला पॉइंट, तो इसलिए सी नेगेटिव आता। तो ये तो गलत हो गया। अगर हम डी की बात करें, क्योंकि ये b² - 4ac डी को बताता है, b² - 4ac ये डी को बताता है। अगर डी की बात करें तो ये बोल रहा है डी नेगेटिव। तो डी इसका नेगेटिव कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो हमें टू रियल रूट्स मिल रहे हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है तो हमें टू रियल, क्योंकि इसे रियल एक्सिस बोलते हैं, तो इसके टू रियल रूट्स हैं। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसके टू रियल रूट्स मिलते हैं। अगर टू रियल रूट्स हैं तो इसका मतलब d <0 होगा। d <0 होगा, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स ग्राफ में क्लियरली हमें मेंशन हो रहा है। तो डी नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। अब ए और बी सेम साइन के लिए फिर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे हम बता सकते हैं कि -b प्लस माइनस √d/2a। ये तो हमारे रूट के अंदर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर बी और ए को हम सेम साइन का ले लें, सेम साइन मतलब सपोज हमने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, तो अगर हमने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया तो उससे क्या होगा कि सपोज हमने 2 ले लिया, ये हमने 2 ले लिया और इसको भी हमने सपोज 2 ले लिया, और डी की वैल्यू हमारी 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट्स है वो हमारे, जैसे यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अगर हम -2 नेगेटिव साइन लें तो हमें नेगेटिव रूट्स मिल जाएंगे -3/4। तो जो इस कंडीशन को, जो कि इसके ग्राफ से देख के पता चल रहा है कि दोनों ही रूट्स, ये जो अल्फा बीटा है वो हमारे ओरिजिन के राइट साइड में है, यानी दोनों ही पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो रूट्स हमारे कैसे आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट फ्लाइंग 50 मीटर above the ground with an elevation of 60 डिग्री। सो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक जो पतंग है हमारी उड़ रही है, यहाँ पे सपोज ये पतंग उड़ रही है हमारी, ठीक है। अब हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ये एल फाइंड आउट करना है। ओके, ये जो 50 मीटर एबव द ग्राउंड यानी 50 मीटर ऊपर उड़ रही है, सो ये जो डिस्टेंस है हमारी ये 50 मीटर है, क्योंकि ये जो है हमारा ग्राउंड लेवल है, इज ए ग्राउंड लेवल। सो विथ एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, हमें ये एंगल दिया है 60 डिग्री, सो यू हैव टू फाइंड द एल, यानी ये हाइपोटेनियस की तरह काम कर रही है यहाँ पे। सो आपको अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, सो आपको पता है कि ये साइन 60 है, यानी ये थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, साइन 60 है थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो किसमें मिलता है हमें, साइन में मिलता है या cos सेकेंड पे मिलता है। तो हम साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2, इट इज 50/L। तो नाउ फाइंड L फ्रॉम देयर। सो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/√3, 100/√3। So option number A, it is 100/√3 मीटर, इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसकी लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये स्ट्रिंग उसकी लेंथ। विच टर्म ऑफ द एपी इज 52, में बताना है कि कौन सा टर्म जो है एपी का वो 52 है। सो ये भी एपी का बहुत इजी क्वेश्चन है, एपी से, एपी बहुत इजी चैप्टर होता है, अगर आप उसको अच्छे से करके जाएं तो आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अभी आपने देखा है कि हमारे एमसीक्यू में दो क्वेश्चन एपी के आ गए, 7, 10, 13 एंड सो ऑन इज 52। सो ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म है 7, और अगर हम डी की बात करें तो डी हमारा होता है 10 - 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो इट इज 3। नाउ फाइंड, यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच टर्म, ये कौन सा टर्म है, तो हमें कौन सा टर्म है, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ई एन की वैल्यू हमें पता है, द वैल्यू ऑफ ए एन इज 52। सो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ई एन, एन से टर्म ऑफ ए पी, इट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए एन इज गिवन 52, और ए की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ए इज 7, and you have to find the n, and the value of d is 3, value of d is 3। So 52 minus 7 equals to n minus 1 into 3। तो 52 में से 7 माइनस करेंगे तो you will get 45, 45 equals to n minus 1 into 3। So n minus 1 equals to 45/3। so इसको कैंसिल आउट करिए, 3 1 जब 3, 3 5 जब 15, n माइनस 1, so n की वैल्यू यहाँ से आ गई 16। n की वैल्यू डायरेक्टली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 16। आप एक डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला जनरली मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें कभी भी nth टर्म निकालना हो तो हम एक फार्मूला ये डायरेक्टली लगा सकते हैं, इट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, अभी हर बच्चों को याद नहीं होता है, बट आप ये भी यूज करते हैं, लास्ट टर्म इसमें जो है 52 माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 7 and the common difference is 3 plus 1। so यहाँ से डायरेक्ट आ गया 45/3 plus 1, ये 3 1s are 3, 3 5s are 15, so 15 plus 1 it is 16। so 16th term is 52, जो 16वां टर्म है वो हमारा कौन है, 52 है इस एपी में। So now on the question number 12, which question number 12 says that the total number of factors of a square of a prime number, एक प्राइम नंबर के स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर के कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपको इसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए था। ये प्राइम नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर जो होते हैं 2 3 5, ये सब प्राइम नंबर है। सो नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, नंबर जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं इनका स्क्वायर करिए, 4 9 25 49। सो अगर हम सिर्फ अभी इतनों भी देख लें तो इसके जो फैक्टर्स है वो कौन कौन है, 1 2
और 4, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। ऐसे ही 9 के देखें तो 1, 3 और 9, इसके भी 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। ऐसे ही 25 के फैक्टर्स देखें, सो 1, 5 एंड 25। ऐसे 49 के अगर आप फैक्टर्स देखें, सो यू विल गेट 1, 7 एंड 49। सो सबके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। सो देखना था सारे नंबरों के फैक्टर्स जो है हमने स्क्वायर किया, तो सबके फैक्टर्स कितने, 3 फैक्टर्स हैं। सो ओनली 3 फैक्टर्स, द आंसर इज 3। द न्यूमेरिकल वैल्यू of the area of circle is equals to the perimeter of a semicircular disc। so इस क्वेश्चन में बोला है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है एरिया ऑफ सर्कल, so एरिया ऑफ सर्कल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू द दैट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। सो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क उसके पेरीमीटर के इक्वल है। सो पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का। अब ये सेमी सर्कल है तो इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के किसके इक्वल है, पाई आर के। यानी पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क, पूरी सर्कुलर डिस्क होती तो उसका 2 पाई आर, अब सेमी सर्कल है, हाफ है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर। सो मैं बोला है कि बोथ हैविंग इक्वल रेडियस, अगर दोनों की रेडियस इक्वल है तो हमने आर ले ली, द रेडियस इज, तो हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। सो अगर इसको एक तरफ लेके आए, सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम पाई आर को कॉमन ले लें, सो इट इज r-1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू जो मिल रही है, आर की वैल्यू 1 आ रही है, सो आर इक्वल्स टू 1 यूनिट। आर की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो 0 पॉसिबल, 0 भी आ रही है बट 0 पॉसिबल नहीं, 0 से कोई सर्कल नहीं बनता, इट इज अ पॉइंट। सो 1 यूनिट इज द करेक्ट आंसर फॉर ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। सो अगर क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो वेर इज द कॉट ए गिवन है, हमें कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस सेकेंड ए फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्रेंगल आपको बनाना चाहिए था इसमें, राइट एंगल ट्रेंगल। सो ये सपोज डी है, ये वर्टेक्स है। सो हमें कॉट ए दिया है, तो कॉट ए होता है हमारा कॉट ए इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस जो होगा ये होगा 7, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर जो अपोजिट होता है एंगल्स की। सो ये हो गया हमारा 12। तो हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सो ये आ जाएगी हमारी 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस 144, 12 स्क्वायर इस, इसका आप ऐड करिए। सो 9 and 4 13, carry 1, 4 4 8 8 10 1 9। सो इट इज 193, रूट ओवर 193। सो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस साइन ए, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इंटू कॉस सेकेंड ए, कॉस सेकेंड ए जो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इट इज रूट ओवर 193 अपॉन परपेंडिकुलर स्टोन। सो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। इट इज 12 प्लस 7 19, 19 रूट अपॉन रूट ऑफ 193, ये इंटू में इंटू रूट ओवर 193 अपॉन 12। रूट ओवर 193 से रूट ओवर 193 कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 upon 12। So option is B. So B option is correct. 19 upon 12. In this question, there is a square lawn of side 8 meter inside a circular park of radius 20 meter. Mr. Joseph wants to plant a sapling in the park. The probability that he can plant it outside the lawn is, आउटसाइड द लॉन वो प्लांटेशन करें, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी निकालनी है। तो आउटसाइड द लॉन, तो हमें ये फेवरेबल यानी इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। सो ये आउटसाइड का एरिया कैसे निकालेंगे, इधर हम सर्कल जो मैंने सेडेड किया उस रीजन का एरिया निकालने के लिए हम सर्कल के एरिया में से माइनस करेंगे। सो सर्कल की जो रेडियस है वो है 20 मीटर, और जो अंदर स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो 8 मीटर।
सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 8 इंटू 8 साइड स्क्वायर, इट इज 64 स्क्वायर मीटर। और जो सर्कल का एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल, so it is pi r square. So pi r square, the radius is 20. Radius is 20. So it is 400 pi स्क्वायर मीटर। सो हमें इस रीजन का एरिया निकालना होगा कि फेवरेबल जो उसे चाहिए कि वो सिर्फ कहाँ पे प्लांटेशन कहाँ पे करे, सैम्पलिंग इन द पार्क। सो प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन। सो हम आउटसाइड इस रीजन का एरिया अगर निकालें, जो सैडेड रीजन है उसका एरिया हो जाएगा सर्कल का एरिया। सर्कल के एरिया में से अगर हम स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दे 64, सो ये तो फेवरेबल है जो उसको चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी। और टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा वो हमारा एरिया ऑफ सर्कल कितना है, इट इज 400 पाई। सो एरिया ऑफ सर्कल इज टोटल एरिया, इट इज 400 पाई। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन, 400 पाई माइनस 64 divided by 400 pi. So the difference between the area of question number 16, difference between the area of semicircle of diameter 2r units and the largest triangle drawn inside the semicircle. So ये अगर हमारा सेमीसर्कल है, सेमीसर्कल तो उसमें एक हमारा लार्जेस्ट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें पता है कि सेमी सर्कल पे डायमीटर से जो ट्रायंगल बनता है, ये प्रॉपर्टी है कि 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, अगर ये हमारा सेमी सर्कल है, सो ये इसकी रेडियस होगी, ये हमारी आर और ये आर। तो ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू √2r निकल के आती है। ये आप ज्योमेट्री से कर सकते हैं, ये वैल्यू आएगी √2r। अगर आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी √2r। सो अब अगर हम बात करें, इसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये हो जाएगा हमारा πr² / 2। ठीक है, और डायमीटर जो है 2r यूनिट्स है। द लार्जेस्ट ट्रायंगल ड्रॉन इनसाइड द सेमी सर्कल, तो जो लार्जेस्ट ट्रायंगल होगा उसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट से हो जाएगा √2r इंटू √2r से हो जाएगा r²। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो ये r² आ जाएगा। इसमें डिफरेंस पूछा है, सो डिफरेंस हमारा हो जाएगा πr² / 2 माइनस r² को कॉमन ले लेना, और पाई की वैल्यू है 22/7 से हो जाएगा आपका इंटू 8, 6 to 8, 8/14। 22 यहाँ पे जब माइनस करेंगे, ये आ जाएगा πr², 22/14, 22/14 πr²/2। ये सेमी सर्कल का एरिया है, और ये एरिया हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल।